नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं खुशबुदिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में वकील पर जानलेवा हमला, हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीदर में धूप और गर्मी का प्रकोप जारी, गर्मी से लोग बेहाल। अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी हताश है, इसीलिए बजरंग दल कार्यकर्ता की तरह बोल रहे हैं, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार प्रज्वल रेवन्ना के कथित बलात्कार के पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। न्यूटाउन पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में बापशेट्टी चंद्रप्पा करसे वकील पर शहर के केएचपी कॉलोनी में कार का पीछा करके कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की, जिसमें वकील पर तेज हथियारों से हमला करने से उनके हाथ, पैर और पेट पर गंभीर चोटें लगी थी और उनका उपचार किया गया, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना की शिकायत शहर के न्यूटाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हमले में इस्तेमाल हुए हथियारों और कार को जब्त करने की बात एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल ने कही। वह आज पुलिस मुख्यालय के परेड ग्राउंड में पत्रकारों से बात कर रहे थे। ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಂದು ಬೀದರ್ ನಗರದ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಆಗಂತಕರು ಏನಂದ್ರೆ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಕೀಲರು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಸಂತೋಷ್, ಬೀದರ್ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಡಿಎಸ್ಪಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರು ಏನಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ। ಇದನ್ನ ಜಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನತ್ತಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಕೀಲರನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ವಕೀಲರು ಏನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಡಗಾಂವ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲ ಏನು ವಾರಸುದಾರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ 3ನೇ ಇವರಾಗಿ ಇವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಮೂಲವಾಗಿ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಮೂಲಕ ಏನಂದರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ। ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಕೈವಾಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ। ಆಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಏನು CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಇವಾಗ 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಸದ್ಯದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಏನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಂಥ ಕಾರು ಮತ್ತು ಮಚ್ಚು ಮತ್ತು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳೇನು ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾರದ ಪುಡಿ, ಇದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಬಂಧಿಸಿದೆ। ಈ 3 ಜನ ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ 2 ಏನಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ। ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಸೊ ಆ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಜಮೀನಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಏನಂದರೆ ಇವನು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇವನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇವನನ್ನು ಏನಂದರೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಪಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಸುಪಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಗಿರ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 85,000 ಏನಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 3 ಜನನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ।
ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂದರೆ ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಭೇದಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. बीदर में गर्मी और धूप का प्रकोप जारी है। हर दिन बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। इस साल बीदर वासियों को कड़ाके की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तापमान 40 और 42 के पार हो रहा है, जबकि बीदर में ऐसा बहुत कम देखने में आया है। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही गर्मी और धूप ने अपने तेवर बताना शुरू कर दिए हैं। दिन में चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। दोपहर 12 बजे के बाद से 3 बजे तक आसमान से गर्मी और धूप का कहर बरस रहा है, जिससे लोग बेहाल हो रहे हैं। लोग दोपहर के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि शाम के समय धूप का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन गर्मी बरकरार रह रही है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि गर्मी के मौसम में खास करके मई के माह हल्की बेमौसम बारिश होती है, जिससे मौसम में कुछ हद तक बदलाव आता है। फिलहाल बारिश होने की उम्मीद की जा रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को विशेष जांच दल एसआईटी के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो लोग अपराध करते हैं उन्हें दंडित करने की आवश्यकता है। खड़गे ने बताया कि एसआईटी कार्यवाही कर रही है, जो करने की जरूरत है। वे कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। जो लोग अपराध करते हैं उन्हें दंडित करने की जरूरत है। जनता दल सेक्युलर पार्टी के नेता एचडी रेवन्ना को शनिवार को कर्नाटक में विशेष जांच दल एसआईटी के अधिकारियों ने हिरासत में लिया। यह गिरफ्तारी बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले से संबंधित है। इससे पहले बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने कथित अश्लील वीडियो मामले में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में धार्मिक और सांप्रदायिक नफरत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि मोदी कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में अपनी 5 गारंटी को सफलतापूर्वक लागू करने और तेलंगाना में भी उन्हें दोहराने से निराश थे और उन्हें डर था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव हार जाएंगे। सिद्धरामैया ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस की गारंटी के कारण लोगों में उनके प्रति आस्था और विश्वास पैदा हुआ है, जिसने गरीबों को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान भी हमने दिए गए आश्वासनों को पूरा किया था। जब हमने विधानसभा चुनाव के दौरान गारंटी की घोषणा की थी तो भाजपा ने झूठा प्रचार किया था कि उन्हें लागू नहीं किया जा सकता, राज्य दिवालिया हो जाएगा, और अब कहते हैं कि वे केवल लोकसभा तक प्रभावी रहेंगे, चुनाव लेकिन सरकार के कार्यकाल तक जारी रहेंगे। राष्ट्रीय पार्टी ने रविवार को कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मौजूदगी में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मांग की थी कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, क्योंकि यह एक अनोखा मामला है जो पिछले 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। हासन लोकसभा क्षेत्र से जेडीएस भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी रेवन्ना एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं। कथित तौर पर सैकड़ों अश्लील वीडियो सामने आने के बाद वह बलात्कार और छेड़छाड़ से संबंधित एक मामले में वंचित था। सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अपने गठबंधन सहयोगी जेडीएस उम्मीदवार को बचाने का आरोप लगाया, जो एक सामूहिक बलात्कारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनमें दुष्प्रभाव होंगे। धारवाड़ में पत्रकारों से बात करते हुए राव ने स्वीकार किया कि कुछ लोगों के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने की खबरें सामने आई हैं। सभी टीकों में साइड इफेक्ट का एक छोटा प्रतिशत होता है, लेकिन लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि टीका लेने से कुछ प्रतिकूल घटित होगा।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले केवल मुट्ठी भर निवासियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने इन मामलों की समीक्षा की है। टीके लगवाने के बाद 4 से 5 लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव हुआ, लेकिन हमें यह आकलन करना होगा कि क्या यह सीधे तौर पर टीके के कारण था या उन्हें होने वाली अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण था। अपहरण के एक मामले में जनता दल सेक्युलर नेता एचडी रेवन्ना को विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि कानून अपना काम करेगा। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अपहरण मामले में इसे खारिज कर दिया गया। मैं अपहृत महिला के बारे में नहीं जानता, मैंने अभी तक पुलिस से बात नहीं की है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और उनके भाई और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के परिवार के बीच झगड़े के कारण हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा कथित सेक्स स्कैंडल सार्वजनिक हो गया। केपीसीसी अध्यक्ष शिव कुमार ने कुमारस्वामी पर पलटवार करते हुए कहा कि 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद पेन ड्राइव की सामग्री को लीक करने के पीछे जो लोग हैं उनके संबंध में मामले में एक नया मोड़ आएगा। 7 मई तक का समय बर्बाद करें, क्या मुझे इससे पहले सारी बातें बता देनी चाहिए? कुमारस्वामी ने कहा था कि उप्पु तिंदवरु नीरु कुडितारे, जो लोग नमक खाते हैं उन्हें पानी जरूर पीना चाहिए। क्या मैंने वह बयान दिया था? बयान से पता चलता है कि पूरा प्रकरण 2 परिवारों के बीच आंतरिक मुद्दों के कारण है। उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों से माफी क्यों मांगी? शिव कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शिव कुमार ने आगे आरोप लगाया कि कुमारस्वामी ने पहले भी कहा था कि जेडीएस प्रज्वल को टिकट नहीं देगी और उनके परिवार का कोई भी सदस्य हासन से चुनाव नहीं लड़ेगा। आप चाहे तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से उनके परिवार के सदस्यों के बयानों को देख लें। अब पेन ड्राइव मामले में भी कुमारस्वामी बेहतरीन बयान जारी कर रहे हैं, अपना रुख रोज बदल रहे हैं। जेडीएस के वरिष्ठ नेता सीएस पुट्टराजु ने दावा किया है कि हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना कथित सिलसिलेवार यौन शोषण मामले में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ बैठक के बाद पूर्व मंत्री पुट्टराजु ने कहा कि कानूनी पक्ष चर्चा जारी है, प्रज्वल आत्मसमर्पण करेगा। हालांकि पुट्टराजु ने कहा कि कुमारस्वामी के साथ उनकी मुलाकात के दौरान प्रज्वल मामला नहीं उठा। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा हिरासत में लिये जाने पर पुट्टराजु ने कहा उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था। उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने एचडी देवेगौड़ा का आशीर्वाद लिया और खुद एसआईटी के सामने पेश हुए। इससे पहले दिन में जेडीएस के युवा नेता निखिल कुमारस्वामी ने कहा कि वह अपने चचेरे भाई प्रज्वल के संपर्क में नहीं है। निखिल ने यह बात जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात के बाद कही। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में वकील पर जानलेवा हमला, हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीदर में धूप और गर्मी का प्रकोप जारी, गर्मी से लोग बेहाल। अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी हताश है, इसीलिए बजरंग दल कार्यकर्ता की तरह बोल रहे हैं, सीएम सिद्धारामैया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार प्रज्वल रेवन्ना के कथित बलात्कार के पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।